मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोलर एंड पिस्टल इंटरेक्शंस. In polar and pistil interactions, what happens? The pollen grains which are formed in the stamens, they fall on the stigma of the carpel. They absorb the stigmatic secretions of the stigma, swells up and become large in size. So they start forming a pollen tube at one of the germ pores, because you know that there are so many germ pores in the axons. So at the germ pore they start forming the pollen tube. This pollen tube grows and enters into the embryo sac through the micropyle. It can enter through the antipodals. When pollen tube enters through the antipodals, then it is called chalazogamy, or when it enters through the micropyle, then it is called porogamy, and when it enters in through the teguments, that is called mesogamy. So mostly the pollen tube enters into the embryo sac through the micropylar end. And you know that pollen grains are shed either in the 2-cell stage or in the 3-cell stage. When they are shed at the 2-cell stage, then these two male gametes, they move along with the pollen tube. And one of the male gamete fuses with the egg and form the zygote, and another male gamete fuses with the central nuclei or the polar nuclei, and they form the 3 nuclei. That is a central cell. Okay, and in this way the pollen grains they enter inside it. But what is the funda behind this? That how this pollen tube is formed, how these stigmatic secretions are absorbed. There is a continuous, because pollen grains can come from the different plants. And which type of pollen grain fuses with the egg of the carpel. So right type of pollen grains is accepted by the stigma, and the wrong type of pollen grain is rejected by the stigma of the carpel. This is done because of the continuous dialogue between the pollen grains and the carpels. Because pollen grains they secrete some chemicals, and those chemicals guide the carpel, guide the stigma to take the compatible pollen grains which are of its type. Only then the pollen grains they will absorb the secretions and become the pollen tube. If they are of wrong type, then the pollen grains will not germinate. If they germinate, pollen tube will not be formed. Okay, so from the central nucleus. So this is called pollen pistil interaction. So pollen pistil interactions में क्या हुआ? Deposition of the number 1 deposition of the pollen grains, number 2 formation of the pollen tube, and number 3 entry of the pollen tube into the embryo sac. Entry of the pollen tube into the embryo sac. Now next topic is double fertilization. यहाँ क्या होता है? यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स में जो है डबल फर्टिलाइजेशन होती है. कैसे होती है? बिकॉज यू सी दैट पोलन ग्रेन्स दे फॉल ऑन इट एंड दे फॉर्म द पोलन ट्यूब. और यहाँ पे मेल गैमीट्स आ गए. एक मेल गैमीट जब वो जाइगोट के साथ फ्यूज कर गया, ठीक है, तो जब वो मेल गैमीट जब वो एग के साथ फ्यूज करता है, तो जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट कौन सा है ये? मेल गैमीट और साथ में क्या है यहाँ पे? एग. क्या है ये? एग. फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड एग दैट फॉर्म द जाइगोट, एंड दिस इज कॉल्ड syngamy. And the egg that is called syngamy. That is called syngamy. And another type of fusion with the polar nuclei, that is second gamete that will fuse with the second polar nuclei. तो यहाँ पे वो जो है that is called triple fusion. That is called triple fusion. क्या बोलते हैं उसको? ट्रिपल फ्यूजन. यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो है एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक के बीच में 2 टाइप के फ्यूजन होते हैं. एक सिंगैमी होती है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है. और जब मैं आपको एम्ब्रियो सैक को अलग से शो कर रही हूँ कि जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट एक चला गया के साथ, उसने जाइगोट बना दिया. दूसरा मेल गैमीट जब वो पोलर न्यूक्लियस के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या बना दिया उसने? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये कैसा है? इट इज 3n. कैसा है ये? इट इज 3n. तो बिकॉज यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फ्यूजन है, दैट इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, 2 फ्यूजन होते हैं वहां पे. ओके जी. उसके बाद जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. This zygote will develop into embryo, and the primary endosperm nucleus will change into primary endosperm cell, and primary endosperm cell will change into endosperm. तो क्या होगा आप देखेंगे आप. अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको कि अब आ जाएगी हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. पहले हमने की प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, देन द फर्टिलाइजेशन. अब आ जाएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि सबसे पहले जो है एक बनेगा हमारे पास एंडोस्पर्म. क्या बनेगा यहाँ पर? एंडोस्पर्म. और दूसरे नंबर पे हमारे पास बनेगा दैट इज एम्ब्रियो. फिर हमारे पास बनेगा आपके पास वो सीड, एंड देन नंबर 4 पे क्या बन जाएगा? फ्रूट.
क्या बन जाएगा वहां पे? फ्रूट। ये 4 चेंजेस है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इसमें इवेंट्स में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्म की। इसकी बात करेंगे एंडो। तो यहां पर आप देखेंगे जो एंडोस्पर्म जो है, द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म प्रोसीड्स द एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो से पहले जो है एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। क्यों? बिकॉज जो एंडोस्पर्म होता है दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, बिकॉज जाइगोट हैज टू चेंज इनटू द एम्ब्रियो and embryo needs the food, so that food will be provided by the endosperm. तो ये आपने क्या देखा कि यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है दैट चेंज इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल चेंज इनटू द एंडोस्पर्म। अच्छा, यहाँ पर जो है बता दिया मैंने आपको, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, अब एम्ब्रियो की बात करते हैं। अब आ जाएंगे हम जाइगोट के पास, क्योंकि एग और जो है मेल मीट मिलकर जाइगोट बना दिया 2n है। अब जो है जाइगोट क्या होगा, इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन। द जाइगोट this is last cell that is called zygote. Zygote will start dividing, it will become the proembryo, then the proembryo again divide and remain, it form the ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। जैसे ऊपर का सोलन स्ट्रक्चर, नीचे का जो है इस तरह का स्ट्रक्चर, देन द ग्लोबुलर एम्ब्रियो अगेन डिफरेंशिएट एंड फॉर्म सेवरल सेल्स, दैट इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इसका एम्ब्रियो कैसा लग रहा है? हार्ट शेप बन रहा है। और जो इसका अपर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सस्पेंसर, और नीचे जो सेल्स हैं दे आर द कोटिलिडन्स, दे आर द कोटिलिडन। और लास्ट में जो है मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। क्या बताया यहाँ से? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से प्राइमरी एंडोस्पर्म, और जो है यहाँ पे एम्ब्रियो एक्सिस होती है, क्या होती है? दूसरे एम्ब्रियो एक्सिस होती है और कोटिलिडन्स होते हैं। तो ये एम्ब्रियो एक्सिस जो है इसका अपर पोर्शन जो है रेडिकल बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को प्लूमूल बोलते हैं। प्लूमूल से स्टेम बनता है, रेडिकल से रूट्स बन जाती है, और ये कोटिलिडन्स होते हैं, डाइकोट्स की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज, 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोट्स के एम्ब्रियो अलग होंगे, डाइकोट्स के एम्ब्रियो अलग होंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये मैंने इधर को लिख दिया है, ये आपका मोनोकोट का ये, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो कैसा होता है, डाइकोट एम्ब्रियो कैसा होता है। तो जो आपका डाइकोट एम्ब्रियो है, डाइकोट एम्ब्रियो जैसे हो गया पी में हो गया, ग्राउंडनट में हो गया, पल्सिस में हो गया, वो डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है? द एम्ब्रियो विच हैज 2 कोटिलिडन्स, विच हैज 2 कोटिलिडन। तो डाइकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, उसमें एक होते हैं कोटिलिडन्स, एक होती है एम्ब्रियो एक्सिस, एक होती है कोटिलिडन और एक होती है एम्ब्रियो एक्सिस। डाइकोट्स में 2 कोटिलिडन होंगे। एम्ब्रियो एक्सिस में क्या होता है? द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस कोटिलिडन्स, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस व्हिच इज अबव द कोटिलिडन दैट इज कॉल्ड प्लूमूल। ये एम्ब्रियो एक्सिस है, ये क्या है? एम्ब्रियो एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस का ऊपर वाला हिस्सा जो कि कोटिलिडन से ऊपर है दैट इज कॉल्ड प्लूमूल, और एम्ब्रियो एक्सिस का वो वाला हिस्सा जो कोटिलिडन से नीचे की तरफ है उसको बोलते हैं रेडिकल। उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। ओके, अब हम करते हैं ये जो है जैसे बताया आपको ग्राउंडनट पी वगैरह में जो है ये डाइकोट एम्ब्रियोज होते हैं, उसमें 2 कोटिलिडन प्लूमूल और एम्ब्रिकल होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियोज की। जो मोनोकोट एम्ब्रियोज होते हैं ज्यादातर जो है जैसे ग्रासिस की फैमिली में है, उनमें क्या होता है? एक ही कोटिलिडन होता है। ग्रासिस में जो कोटिलिडन होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, जबकि यहाँ पे अपर एंड लोअर पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। तो मोनोकोट सीज में जो है कोटिलिडन जो है ऑन द लेटरल साइड होता है, एंड द कोटिलिडन ऑफ द ग्रास फैमिली इज कॉल्ड स्कूटेलम। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड स्कूटेलम। ओके, अब स्कूटेलम के बाद हम बात करते हैं कि जो लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस होता है, लोअर एंड ऑफ द एक्सिस दैट कंसिस्ट ऑफ रेडिकल दैट इज कवर्ड विद द रूट कैप, एंड रेडिकल एंड रूट कैप टुगेदर कवर्ड विद द लीफ प्राइमोर्डिया ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू दैट इज कॉल्ड कोलियोरिजा। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज कोलियोरिजा? द लोअर पार्ट ऑफ द रेडिकल, जो एम्ब्रियो एक्सिस का लोअर पार्ट है, रेडिकल एंड रूट कैप होता है, उसके ऊपर जो है लेयर्स होती हैं लीव्स की, अनडिफरेंट टिश्यू होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कोलियोरिजा। ओके, एपिकोटाइल। व्हाट इज एपिकोटाइल? ये जो है द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कोटिलिडन्स, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट, हाँ, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्कूटेलम, जहां पे स्कूटेलम अटैच किया है किसके साथ? एम्ब्रियो एक्सिस, उसके ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं हम? एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं उसको? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के ऊपर जो है शूट अपेक्स होता है दैट इज कॉल्ड कोलियोपोटाइल, उसको क्या बोलते हैं? कोलियोपोटाइल। किसकी बात करेंगे? सीड की। तो सीड जो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है या एंड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। और द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स आर कॉल्ड सीड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्रूट्स। अब सीड कोट होता है, और क्या होता है यहाँ पे? वो कोटिलिडन्स होते हैं, और क्या होते हैं? एम्ब्रियो एक्सिस होते हैं। क्या होता है? एम्ब्रियो एक्सिस। जो सीड कोट होता है, जो इंटेगुमेंट्स है, आप देख रहे हैं एम्ब्रियो सैक के बाद क्या होते हैं? इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स जो सीड कोट में चेंज हो जाते हैं, दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। वेयर एज द कोटिलिडन्स होते हैं, मोनोकोट्स में 1 कोटिलिडन होगा और डाइकोट्स में 2 कोटिलिडन्स होते हैं, एंड दे आर द रिजर्व, दे स्टोर द रिजर्व फूड मटेरियल। इनके पास क्या होता है? जैसे सीड में सॉइल के बीच में रहना है या जब तक वो एडवर्स कंडीशन है तो वो उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो ये जो कोटिलिडन्स होते हैं दे आर द सोर्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, एंड एम्ब्रियो एक्सिस से कोटिलिडन निकलते हैं, वो
आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और बात करेंगे हम कि हमारे पास दो टाइप के सीड्स होते हैं, एक होते हैं एल्ब्यूमिनस, द रिमेनेंट्स ऑफ द न्यूसेलस। कई सीड्स में जो है ये आप देख रहे हैं, ये व्हाइट वाली एम्ब्रियो सैक है, उसके बाद जो रेड लाइन है बाहर जो उसके साथ अटैच होती है वो कई सीड्स होते हैं, उसमें न्यूसेलस की लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं उसको? पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं उसको? पेरिस्पर्म। दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर में होता है, और इसके अलावा जो है एक और है बीट रूट में होता है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि मैच्योर ओव्यूल्स हैं, दे चेंज इनटू सीड एंड ओवरी इज चेंज इनटू फ्रूट। ओवरी इज चेंज इनटू फ्रूट। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो हमारा एंडोस्पर्म भी हो गया, फिर वो एम्ब्रियो भी हो गया, फिर सीड भी हो गए, अब जो है उसके बाद हमने बताया फ्रूट। अब आप देखते हैं जो बाल ऑफ द ओवरी है, बाल ऑफ द ओवरी जो है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं उसको? पेरिकार्प। पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। सबसे बाहर वाली लेयर उसको एपिकार्प बोलेंगे, बीच वाली को मेसोकार्प बोलेंगे, सबसे अंदर एंडोकार्प। उसके अंदर क्या होता है? सीड प्रेजेंट है। अच्छा, फ्रूट्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, एक फास्ट फ्रूट्स होते हैं और एक ट्रू फ्रूट्स होते हैं। जो आपके ट्रू फ्रूट्स होते हैं दे ऑलवेज बर्स्ट फ्रॉम द ओवरी। दे ऑलवेज बर्स्ट फ्रॉम द ओवरी। जो आपके फास्ट फ्रूट्स हैं दे another part of the flower such as thalamus. The fruits which burst from any part of the flower other than the ovary, they are called the fast fruits. For example, apple. एप्पल में आप देखेंगे, एप्पल में क्या होता है, जैसे कि ये आपकी ये ऐसे है, ये ऐसे बनाते हैं ना कार्पल, तो ऐसे, और यहाँ पे वो होता है क्या कहते हैं? थैलेमस। तो ये सारा ही ऐसे हो जाता है, ये लाइक दिस, ये ऐसे डेवलप हो जाता है, और बीच में क्या रह जाती है? ये ओव्यूल्स रह जाते हैं, और वो थैलेमस जो वो दैट बिकम फ्लैशी एंड दैट प्रोवाइड द फूड मटेरियल। ओके, तो ट्रू फ्रूट जो है जो ओवरी से डेवलप होते हैं, फास्ट फ्रूट जो होते हैं वो एनी पार्ट अदर देन ओवरी से डेवलप होते हैं, उनमें ओवरी जो रिड्यूस फॉर्म में होती है। अच्छा, उसके बाद जो एक होते हैं आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, द फ्रूट्स विच आर फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन, the fruits which are found without fertilization they are called the parthenocarpic fruits. For example, banana. For example, banana. अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि what are the advantages of seeds in case of angiospermic plant? देखो, सीड्स की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 कि उनको जो है, जैसे कि आप देखें ब्राइफाइट्स में, टैटोफाइट्स में जो है मेल गेमेट्स को ट्रांसफर होने के लिए वाटर चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। सो यहाँ पे क्या है, जो सीड्स हैं इनकी बहुत सारी एडवांटेज है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए देयर इज नो नीड ऑफ वाटर। नंबर 2 जो है वहां पे सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड। सीड्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, some have spine, some have feathers, some are lightweight and different types, so they can be dispersed from one place to another place. ये भी हमारे पास जो है वो इसके बीच में पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा जो है आपके पास पॉइंट है कि दे हैव सफिशिएंट रिजर्व फूड मटेरियल, उनके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। चौथा जो है, एंड दे हैव सीड कोट्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन एंड दे प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। जैसे हमारे हार्ट को बचाने के लिए पेरिकार्डियम और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे लेयर्स होती हैं, उसी तरह सीड्स के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेगुमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ ए सीड कोट। उसके बाद जो है, बिकॉज सीड्स आर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे प्रोवाइड द वेरिएशन, दैट इज वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब यहाँ पे 2 टर्म्स और रह जाती हैं, उन टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताना है, दैट इज एक है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, अच्छा, जैसे मैंने बोला fruits are found without fertilization, they are called the parthenocarpic fruits, and in the similar way when the seeds are found without fertilization, that is called the apomixis. You know, apomixis है, it is actually a type of asexual reproduction. it is asexual reproduction की ही तरह है, और ये it mimics, ये नकल करती है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे होता कैसे, आप कैसे बोलेंगे सीड्स आर फाउंड विदाउट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो आपका जाइगोट जो होता है वो जो है डिप्लॉइड जाइगोट होता है। कैसा होता है ये? डिप्लॉइड जाइगोट होता है। ये विदाउट मियोसिस फॉर्म होता है, विदाउट मियोसिस, और ये किसमें चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है।
without fertilization. So what is apomixis? Formation of the seed without fertilization, because here diploid zygote that changes into the embryo, diploid zygote is formed without meiosis, and embryo changes into the seeds without fertilization, that is called apomixis. अब जो है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मेरे पास है, that is polyembryony. Polyembryony. Embryony. Polyembryony नाम से ही क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन ओव्यूल, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन embryos in the ovule, formation of more than one embryos in the ovule is called the polyembryony. So polyembryony में क्या है, इसमें क्या होता है, ज्यादातर आपने देखा होगा जैसे सिटस फैमिली होती है, उसमें क्या होते हैं, सिटस फैमिली में जो आपका न्यूसेलस है, ये रेड वाला टिश्यू देख रहे हैं आप, न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस के जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इनटू द एम्ब्रियो सैक, ये अंदर व्हाइट वाली एम्ब्रियो सैक है, न्यूसेलस के टिश्यू जब वो अंदर को जाने शुरू हो जाते हैं, हर एक ओव्यूल से बहुत सारे जो है वो एम्ब्रियोस निकलते हैं, एंड दे प्रोड्यूस इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, दैट इज कॉल्ड द पोलीएम्ब्रियोनी. ये सिट्रस फैमिली में होता है, किसमें होता है ये सिट्रस. सो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन एम्ब्रियो फ्रॉम वन ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड द पोलीएम्ब्रियोनी, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यूसेलस. ओके, हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया. इस तरह से मैंने आज आपको ये यूट्यूब लिंक दिया है, तो कल इसके मैं नोट्स दूंगी. अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते. ओके.